Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Suprabhat, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. कुशाग्र रीड करो तो रीड करो कुशाग्र वो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज काइंड ऑफ चार्जेज रीड करो तो काइंड ऑफ चार्जेज और read करो. Most of the early experiences and study of the properties of charged up object were done by using ebonite rods rubbed against panel and glass rod rubbed against silk. These gave us a very useful and interesting information about the properties. Let us perform some activities to learn about these properties. Activity 3. Take two ebonite rods and two glass rods, among which two stand and store thread suspended one of the ebonite rod and one of the glass rod from each other of two stand. Charge up each of the two suspected rods by rubbing them vigorously against a panel. Silk representative. Now take the another ebonite rod and charge it up also the vigorously against the panel. Bring this charged ebonite rod near the suspected and charged ebonite rod. You will find that the suspected charged ebonite rod moving away from that is getting replaced by the charged ebonite rod. Now take the charged ebonite rod towards the suspected glass rod. You will find the glass rod moving towards that is getting attracted by the charged ebonite rod. Repeat the observation by charging up the other glass rod. When you bring in the turn near the suspected ebonite and glass rod, you find that the suspected charged glass rod moves away from that is gets replaced by the charged glass rod held in the hand. Second, the suspected charged ebonite rod moves toward that is get attracted by the charged glass rod held in the hand. kind of charges in nature when there were no discovery of electron and proton and neutron, then that time it was very difficult to know how many kind of charges are present in the nature. And scientists did many experiments for knowing the type of kind of charges in nature. So one experiment that is done by the scientist was the very most important thing because from that time it is decided the charges are two type in nature. So for knowing the type of charge, हम बहुत मुश्किल से आज जो है क्लास हुआ है और फिर अभी ऐड हो गए तुम लोग, डिफिकल्टी हो रही है, बहुत मुश्किल से उस ये में हम गए हैं उधर से बहुत दूर से, वो पहले वाले प्रीवियस लैब से जल्दी से हम ऐड हुए हैं, फिर तुम लोग का क्लास हो सका है, यहाँ से नहीं हुआ। तो देखो ये जो है कितने टाइप का चार्जेस है, उसके लिए क्या किया, साइंटिस्ट की दो रॉड लिया। कौन कौन सा रॉड? इबोनाइट रॉड, एक रॉड जो है इबोनाइट का और दूसरा जो है ग्लास रॉड। इबोनाइट रॉड को क्या किया कि उसको विग्रसली
फ्लैनेल क्लॉथ से रब किया और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया और रब करके इबोनाइट रॉड को सस्पेंड कर दिया सस्पेंडिंग स्टैंड से इबोनाइट को। अब दूसरा इबोनाइट रॉड भी सस्पेंड किया और फिर पहले वाले सस्पेंडेड इबोनाइट रॉड के पास ले गया तो दोनों इबोनाइट रॉड एक दूसरे से दूर भाग गए। दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वे दूसरे से दूर भाग गए। मतलब ये शो करता था कि जो इबोनाइट रॉड है, अगर उस इबोनाइट रॉड को फ्लैनेल क्लॉथ से रब करते हैं तो जो चार्ज एक्वायर करता है, बोथ ऑफ द इबोनाइट रॉड हैविंग द सेम चार्ज, है ना, सेम चार्ज एक्वायर करता है। फिर जो है ग्लास रॉड को रब किया किसके अगेंस्ट, सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट, और फिर उसको ग्लास रॉड को सस्पेंड कर दिया स्टैंड से। और फिर जो है इबोनाइट रॉड जो चार्ज करके ग्लास रॉड के पास लाया गया तो देखते हैं कि दोनों के बीच अट्रैक्शन है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर अट्रैक्ट कर लिया। अब देखो बिना कोई कारण के, बिना कोई वजह के जो है वो साइंटिस्ट जो कोई कारण नहीं था कहने का कि कौन सा चार्ज ग्लास पे है, कौन सा इबोनाइट है, ये कोई कारण नहीं था। लेकिन ये तो पता चला कि दो तरह का चार्ज है नेचर में, है ना, जो कि एक चार्ज जो इबोनाइट रॉड एक्वायर करता है, दूसरा जो है ग्लास रॉड एक्वायर करता है। और तो ये कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, वो इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है एक साइंटिस्ट थे, बहुत देखो बेंजामिन You are not audible. है, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इबोनाइट पे जो चार्ज एक्वायर करता है, व्हेन इबोनाइट इज रब अगेंस्ट द फ्लैनेल, देन इबोनाइट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। व्हेन द ग्लास रब against the silk cloth, glass rod acquired the positive charge, whereas flannel rod rub against the ebonite rod acquired negative charge. And light charges repel each other. There is a force act between the same charge object, that is the repulsive force. दो सेम चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स अपीयर होता है उसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स, और दो अनलाइक चार्जेज के बीच जो फोर्स अपीयर होता है उसको अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो ये जो है ये ग्लास रॉड ये जो एक्टिविटी 3 में है कि इबोनाइट एक्वायर ये which rod which charge, negative charge, or glass rod acquire positive charge. That's why when the glass rod, that is after charging, it is suspended with the suspend, and the ebonite rod is brought near the glass rod, they attract to each other. Now charges are produced in pair when glass rod rub against the silk cloth. So there must be transfer of electron from glass rod to silk cloth, or either from glass rod to silk cloth, or from silk cloth to glass rod. And when the ebonite rod rub against the flannel cloth, then it must happen is some transferring. If this happen, that's why they both glass rod or ebonite rod get charged up,
है ना, दे एक्वायर्ड ये फॉर नोइंग कि ये even the charge transfer takes place or not, if the both get charged up, like the comb and the hairs, है ना, as all of you have seen yesterday ki how we rub the our hair with my hair with the comb get charged up. That's why it was able to carry the tiny bits of paper. And my hair is also gets charged up. That's why it formed the cloud-like structure. They acquired same charges. That's why they are repulsive. They are repelling to each other, and due to repulsive force, the hairs makes like a cloud. But so when the comb is rubbed against the hair, the comb able to attract the tiny piece of paper. But when the hair and comb is brought simultaneously near the tiny bits of paper, the combination does not able to attract the tiny bits of paper. Same way, when the ebonite rod rub against the flannel cloth, and the flannel cloth and the ebonite rod is rubbing brought near the tiny piece of paper, then ebonite rod not able to pick up the small pieces of paper, dry grasses, and any light object. Same way, when the glass rod rub against the silk cloth, and both of them, glass rod and silk, is brought near the tiny bits of paper, then the combination does not able to attract the bits of paper. This shows that when the flannel cloth or ebonite come together, they having equal and opposite charges, and when they are come closer, their charges cancel to each other. In pair, they acquire the zero charge, and so we can say the charges always produce in pair, है ना? Same way, if the glass rod rubbing against the silk cloth, and glass rod as well as silk cloth brought near the small bits of paper and dry leaves, then the combination of silk cloth and glass rod not able to attract it. This shows that when the combination come together, their charges cancel to each other because they acquire the equal and opposite charges, and that's why effect of combination is zero, and the combination do not able to attract the very light object towards itself. So the charges always produce in pair. ये जो है अब ये जैसे तुम्हारा ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, तो दोनों जो है ये चार्जअप हो जाता है, और दोनों चार्जअप हो गया, और जब दोनों चार्जअप हो गया, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो दोनों का चार्ज एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल। ये आसना है, ध्यान दो, दोनों को जब इकट्ठा कर देते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन को, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, फ्लैनेल और इबोनाइट रॉड, तो कॉम्बिनेशन जो है, चूंकि कॉम्बिनेशन में दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेड एक्वायर किया रहता है, तो कॉम्बिनेशन जो है अब जो है चार्जअप नहीं रह जाता। दोनों को इकट्ठा करते हैं तो चार्जअप नहीं रह जाता है, इसके वजह से वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब अर्थिंग के लिए सब लोग जो है
ब्लैक बोर्ड पर देखो। Excuse me, मैम। हाँ बोलो। मैम अगर इबोनॉइट रॉड और फ्लैनल है, अगर इबोनॉइट रॉड में अगर नेगेटिव चार्ज है और फ्लैनल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा ना? दोनों को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। और इसीलिए देखो ए सुनना, उसको उस एक्सपेरिमेंट को क्यों अभी स्वेटर निकालते हो बॉडी से जब स्वेटर निकालते हो, किसी ने चिंगारी निकलते हुए देखा है ऐसे करके जो स्वेटर बाहर निकालते हैं? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. देखे हो? यस मैम। अच्छे। No, ma'am. और उसके हाँ देखे हो ना? अच्छे। उसके बाद जो है देखोगे कि तुम्हारे बॉडी का हेयर कैसा हो जाता है, खड़ा हो जाता है ऐसे। यस मैम, थोड़ा यस इसका मैम। ध्यान देना तो। मैम मैम पूरा बॉडी खड़ा हो के जाता हेयर है। से रबिंग होता है जब हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना। हम तो अक्सर देखते हैं, जैसे अभी 2 स्वेटर पहन के आए हैं एकदम, और दोनों स्वेटर में रबिंग और बॉडी में रबिंग। यस मैम, खड़ा हो जाता है। निकालोगे अगर अंधेरे में, लाइटेड में नहीं मैम दिखाई देगा, लाइटेड रूम तुम्हारा रहेगा तब दिखाई नहीं बहुत देगा। ज्यादा खड़ा हो लेकिन जाता है। हाँ रूम अगर अंधेरा रूम रहे तो वो जो निकालोगे बॉडी से और वो जो चिंगारी आएगा वो तुम लोग देखोगे। और अभी तक जो लोग नहीं देखा है, जो लोग भी नहीं देखा है, हाँ हम कैसे खड़ा होता है? मैम ये कैसे हो सकता है मैम? हेयर जो है खड़ा हो जाता है बेटा, चार्ज हो जाता है ना, सेम चार्ज से चार्ज हो जाता है, सारे हेयर्स में सेम चार्ज हो जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो खड़ा हो जाता है। स्वेटर चार्ज होता है। रिपल्शन की वजह से वो लोग निकालोगे तो चिंगारी जैसा निकलता है। इवन की प्लास्टिक का नेट है ना, ये हम ऐसे ही घर में देखे हैं कि जब मॉर्निंग में तो एकदम अंधेरा घर में रहता है, रूम बंद, विंडो बंद रहता है, तो अगर उसको भी फोल्ड करते हैं ना, तुम लोग सभी को कह दे रहे हैं कि इतने जगह तुम लोग देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, इतना जगह तुम देख सकते हो। तो जैसे ही नेट को फोल्ड करते हैं तो उसमें चिंगारी जैसा निकलता है, वो भी रबी। स्वेटर चार्ज होता है मैम, स्वेटर चार्ज होता है। हाँ चार्ज हो जाता है रबिंग से, हाँ बिल्कुल रबिंग से चार्ज हो जाता है, हाँ चार्ज हो जाता है बेटा। और बताते हैं, और कहा तुम्हारा, और ये एक्सपेरिमेंट अलग से करने की जरूरत, केवल ध्यान देने की जरूरत है। जब कोई कपड़ा सिंथेटिक तुम अपना पैंट पहनते हो तो वो पैर में चिपका हुआ रहता है, और जैसे ही बाहर निकालोगे या फिर प्लाजो, गर्ल्स का बताते हैं, चाहे हम भी कभी पहन लेते हैं, सिंथेटिक प्लाजो है मेरे पास, अगर वो पहन लिए, सिंथेटिक प्लाजो पहन लिए, नहाने धोने के बाद मेरा हेयर ड्राई है और उस प्लाजो को पहन लिए, वो चिपक जाता है पैर में, क्योंकि जब रबिंग होता है तो वो चार्ज अप हो जाता है। और कैसा चार्ज हो जाता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और देखोगे कि वो प्लाजो फैलना चाहिए, फैलने के लिए सिंथेटिक हमने लिया है, लेकिन वो फैलता नहीं है, पैर में ही चिपक जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये तो हम ये एक्सपीरियंस किए हैं और इसको तुम लोग खुद भी देख सकते हैं सिंथेटिक वाले में। इसलिए ऐसा होता है सिंथेटिक वाले में, इसलिए सिंथेटिक जो सिंथेसाइज कपड़ा है, टेरलिन नायलॉन का कॉम्बिनेशन से जो बना है, उस कपड़े में ये तुम लोग देखोगे, या फिर उलेन वाले में देखोगे। उलेन वाले में तो रबिंग से देखोगे कि मेरा देखो ना, अभी स्वेटर जो पहने हुए हैं, रबिंग होने से पूरा बबल्स अगर दिख रहा होगा तो बबल्स, ये बबल्स क्यों हो गया? चार्ज अप हो गया तो बबल्स हो गया रबिंग से। तो ये एक्सपेरिमेंट अलग से करने का थोड़ी है, वो तो ध्यान दोगे तो एकदम पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है कैसे रबिंग से चार्ज अप हो जाता है, और कैसे चार्ज जो है स्टैटिक इन नेचर है, रुका हुआ, इसमें करंट तो नहीं फ्लो कर रहा है, स्टैटिक है, खत्म हो गया। हाँ तो ये स्टैटिक इन नेचर। अब देखिए अर्थिंग, अर्थिंग देखिए ब्लैक बोर्ड पर देखिए, किसी भी चीज को क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ये सबको बताए हैं, एटम का स्ट्रक्चर बताए हैं, और एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है ना, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव charge. चार्ज नेगेटिव दोनों बोथ है। अगर इसमें ये है एक ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज है, अगर इसको हम अर्थ के कांटेक्ट में रख देते हैं तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थिंग। पुटिंग चार्ज ऑब्जेक्ट इन अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। एक्चुअली अर्थ जो है एक बड़ा रिजर्वर की तरह वर्क करता है। अर्थ जो है बड़ा रिजर्वर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी। अब देखो ये कब रखते हैं घर में, जो है ना सारे अप्लायंसेस जो है उसमें बनाए रहता है। घर में एक अर्थिंग किया होगा, अर्थिंग सब घर में रहता है। अगर अपार्टमेंट है तो पूरे लाइन का एक जगह अर्थिंग किया रहता है ताकि तुमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जब चार्ज आता है तो आसानी से वो जो है अर्थ में मूव कर जाता है। अब देखो ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो क्या होता है। देखो हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, किसी भी ये ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो इसको रब किया, अगर ये रब कर दिया, जब रब कर देते हैं, जब रब करते हैं, रबिंग करते हैं तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। ये जो है चार्ज का सेपरेशन होता है। रबिंग करने से क्या होता है एक्चुअली कि चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पार्शियली एक तरफ मूव कर जाता है, तो जिधर मूव करता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उधर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिधर से दूर भाग जाता है इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमको इस ऑब्जेक्ट को अगर क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज अप करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो इस तरफ वाले को चार्ज को क्या कर देते हैं, अर्थ में रख देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो ये सारा चार्ज जो है ये मूव कर जाता है किसमें, अर्थ में। अब चार्ज मूव कर दिया, हाँ ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया अर्थ में, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज से चार्जिंग अप हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मैम क्या बोल रहे हो आशीष? क्वेश्चन है मैम, वो पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब नहीं करेगा अर्थ? पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज वो भी तो मैम अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा। सुनना, केवल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है, केवल मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, अभी से लेके 12th तक, जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक केवल मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। तो अब हमको हाँ अभी बताते हैं चार्जिंग अप। देखो यहाँ हम मेथड ऑफ चार्जिंग अप हम बता रहे हैं और उसमें इसको अर्थिंग को और बताएंगे। ये जब रब किया, जब भी इसको रबिंग करते हैं तो चार्ज का सेपरेशन होता है केवल। जब रबिंग तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज इधर और ये पॉजिटिव चार्ज इधर, और इसको अर्थिंग कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया अर्थ में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसको इस चार्जिंग को क्या कहते हैं, कौन सा चार्जिंग कहेंगे मैम? इंडक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग कहेंगे ना, रब कर रहे हैं तो इंड्यूस कहाँ हो रहा है, मैम यहाँ रब हो रहा है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये क्या हो जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और दूसरा चार्जिंग जो क्या कह रहे हो तुम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन बाद में बताते हैं, इंडक्शन बाद में बताते हैं, पहले कंडक्शन। अगर ये हाँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये जो अरे ये देखो ना बेटा, ये जो है ये हमारा हेयर है, इसके ऊपर हेयर है कि नहीं, और ये स्वेटर है, तो ये देखोगे खोलोगे, ये ध्यान देना ना आज के बाद, तो ये देखोगे हेयर खड़ा हो जाता है। तो ये क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि इस दोनों के बीच फ्रिक्शन हुआ, इन दोनों के बीच क्या हुआ,
फ्रिक्शन हुआ। ये भी चार्ज हो गया और मेरे स्किन पर जो हेयर है वो भी चार्ज हो गया। इसको कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। हो गया है यार कहेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरा चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब देखो ये इलेक्ट्रिक, ये एक इलेक्ट्रिक सेल है और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज और ये इसमें लगा हुआ है और इसमें जो है क्या लगा हुआ है, एक देखते हो बोर्ड, और बोर्ड में इसको क्या करते हैं, की प्लग लगा रहता है ना, की प्लग लगा रहता है। और जब की प्लग में आयरन को डाल दिए, आयरन करने वाला आयरन को जब डाल देते हैं, लगा देते हैं इसमें, तो इसका चार्ज क्या करने लगता है, क्या करने लगता है, इसमें फ्लो करने लगता है। या आयरन लगा दो या फिर बल्ब लगा दो, कुछ भी लगा देते हो तो यही चार्ज इसमें फ्लो करने लगता है, कर रहा है ना। तो when the uncharged object put in contact with the charged object, then charge shared by the uncharged object. This method of charging of known as conduction. इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। ये देखो, ये ऊपर हम लोग ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ना लगा हुआ क्लासरूम में, क्लासरूम में बल्ब है, तो ये चार्ज शेयर करता है ना, चार्ज तो शेयर करता है। स्विच ऑन करेंगे तो चार्ज शेयर करेगा, तो कैसे शेयर करेगा, कंडक्शन। ये कंडक्ट में है, हाँ तो कंडक्शन है ना। मैम ये तो रिपल्सन होगा फिर। रिपल्सन क्यों होगा, सेम चार्ज उसमें बनाया हुआ है। मैम अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन ही ना होगा। किस में रिपल्सन होगा मैम दो ऑब्जेक्ट में, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, लेकिन अगर बल्ब को उसमें ऐड कर दिए तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है, तो वो सेम चार्ज फ्लो करेगा ना, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो फ्लो करने लगेगा। तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाई, क्या कहते हैं, अरे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, बोलो तो क्या कैसे करते हैं, मोबाइल का चार्जिंग कैसे करते हैं, बोलो बोलो। चार्जर से, चार्जर को कहाँ लगाते हैं, चार्जर को कहाँ लगाते हैं, स्विच में, पावर प्लग में, हाँ प्लग में डालते हैं, चार्जर को प्लग में डालते हैं, तो वो चार्ज को शेयर करता है ना, जो चार्ज है उसको चार्ज शेयर करता है। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब देखो इंडक्शन, इंड्यूस करना। इंडक्शन का मीनिंग है इंड्यूस करना। अब इंडक्शन क्या है, इंडक्शन ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ सभी ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं, यहाँ कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हारा ये रबिंग करते हैं, कॉम्ब को लाते हैं किसके सामने, पेपर के सामने, वही सोच लो, कॉम्ब को लाते हैं पेपर के सामने। एक्चुअली इंडक्शन में पेपर से चार्जिंग अप नहीं होता, इसके लिए मेटल चाहिए। ये जो है ना चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए क्या चाहिए, मेटल चाहिए। इंडक्शन चार्ज के लिए मेटल चाहिए। मैम इलेक्ट्रो, ये
हाँ, ये मेटल चाहिए। अब इसमें चार्जिंग में ये चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं इसके सामने, किसके सामने, इस मेटल बॉडी के सामने लाते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट को। अगर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो क्या होता है कि इधर जो है नेगेटिव चार्ज का क्लाउड ज्यादा होगा और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एटम में है, केवल चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन। मैम एक क्वेश्चन है, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता, तो ये कौन सा चार्ज इंड्यूस किया, ये इसके इफेक्ट में, इस चार्ज ऑब्जेक्ट के इफेक्ट में इस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस किया, नेगेटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, और इस बैक में क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब जो है ये मेटल बॉडी है और इसको अगर हमको अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं तो यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, अर्थ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और इसमें पॉजिटिवली चार्ज खत्म हो जाता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये पूरा मेटल जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से भर जाएगा। तो ये कैसा, मैम पेपर के साथ नहीं होता ये, मैम ये मैम एक पेपर के साथ क्वेश्चन नहीं है, होता है। नहीं, पेपर के साथ होता है टेम्परली, लेकिन यह मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ क्या होता है, इसके लिए इंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये मेटल ऑब्जेक्ट होता है, मेटल